हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष गर्ग। केमिस्ट्री टाइम चैनल में आपका स्वागत है। तो आज वाली क्लास में हम थर्ड नेम रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ऑलरेडी नेम रिएक्शन हम दो डिस्कस कर चुके हैं, वन इज द वुर्च रिएक्शन एंड वन इज द राइमर टीमन रिएक्शन। आज वाली क्लास में हम कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात करने वाले हैं, उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आज वाली क्लास में हम उसका डिस्कशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो आज वाली क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? जब आप किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई ऐसी रिएक्शन जो अपने आप नहीं हो सकती, बट उस रिएक्शन को आप कैरिड आउट करवाते हैं वाया इलेक्ट्रिक करंट, सच प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। राइट सर? व्हाट इज कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस? एक बार अपन इसका डेफिनेशन देखते हैं, देखिएगा प्लीज। व्हेनेवर एन aqueous solution of salt of carboxylic acid and sulfonic acid gets electrolyzed, then hydrocarbon, it can be alkane, it can be alkene, it can be alkynes, gets formed. So whenever an aqueous solution of salt, of carboxylic acid and sulfonic acid gets electrolyzed, then hydrocarbon, it can be alkane, alkene or alkynes, gets formed. इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बेटा आप बोलते हैं कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। मैं एक रिएक्शन की हेल्प से समझाता हूं। मान लीजिए आपको एसीटेट आयन दिया गया है एंड वी आर टेकिंग द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसीटेट। व्हेन इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, what is the product I will get? CH3 that is ethane plus CO2 plus NaOH plus H2 गैस। ये प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं ये चीज मैं आपको समझाऊंगा। फर्दर क्या होता है, NaOH CO2 से रिएक्शन करके बना लेता है Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट। राइट सर? तो ये तो बेटा एक लाइन में आपकी रिएक्शन होती है खत्म। जब भी आप सोल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड का और उसे आप इलेक्ट्रोलाइज्ड करवाते हैं, मतलब करंट पास करते हैं, तो आपके पास बेटा हाइड्रोकार्बन बनता है। इट कैन बी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन गेट्स फॉर्म। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बेटा बोला जाता है कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। राइट सर? नाउ लिसन केयरफुली, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज वी नो वन थिंग, लिसन केयरफुली, वी वॉन्ट टू नो द मैकेनिज्म। इन द इलेक्ट्रोलिटिक कंपार्टमेंट we have cathode as well as we have anode. Right? We are discussing about the mechanism.
We know the polarity at the cathode is negative polarity and it is connected with the positive terminal of the battery, right sir? Now towards the negative terminal, the ions which are positively charged and present in water will move towards cathode, right? Now listen carefully. I have the aqueous solution of acetate ion. Listen carefully. I have aqueous solution of acetate ion. It can be sodium acetate, it can be potassium acetate, calcium acetate, right beta? Listen carefully. What is the cations I have? Cations, that is Na plus, and from water what is the cation I have? That is H plus ion, right beta? Listen carefully. At cathode, both Na plus and H plus will move towards cathode, and we know H plus, by taking one electron it gets converted into half H2. When I will add OH minus ion on both the side, what I will get? It will become water. By taking one electron, it will be converted into half H2 plus OH minus. That point is very important. Means at cathode, reduction of water takes place because the reducing tendency of water is greater as compared to sodium plus ion. That's why water is getting reduced first. This is fine. When water is getting reduced, I am getting H2 gas and concentration of OH minus also increases. This is fine to you. Listen carefully. एक तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पे कौन सा गैस इवॉल्व होता है? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज H2, राइट सर? नाउ लिसन केयरफुली. एट द एनोड, acetate ion as well as OH minus will move towards anode and oxidation reaction is acetate ion will gets oxidized. What is the meaning of oxidation? It is the loss of electron, right? So when it will undergoes oxidation, what I will get? Basically this is oxygen radical plus the loss of one electron, right sir? Now there is one step, that is the RDS of this particular reaction. Listen carefully. This carbon-carbon bond gets cleaved homolytically. When it cleaved homolytically, it forms CH3 radical plus I will get CO2 plus this is the one electron that I have, right sir? Now listen carefully. This CH3 radical will undergoes dimerization. Means let us suppose I am taking 2 mole of this, I will get 2 mole of this, I will get 2 mole of CO2, I will get 2 mole of CH3 radical. Finally what I will get? CH3 plus I will get 2 moles of CO2 plus I will get, that is nothing, it is 2 electron I will get, right? So this is the final equation that I am getting. कैथोड पे हमने क्या देखा? कैथोड पे बेटा आपने देखा रिडक्शन हो रहा है. किसका रिडक्शन हो रहा है? वाटर का रिडक्शन हो रहा है. कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है? H2 गैस प्रोड्यूस हो रही है. और जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस चलता जा रहा है वैसे वैसे OH माइनस का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज कर रहा है. यदि OH माइनस का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो मुझे यह बताएं सॉल्यूशन का पीएच इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? द करेक्ट आंसर इज सॉल्यूशन का पीएच इंक्रीज करेगा. मींस आई कैन से एज द इलेक्ट्रोलिसिस कंटिन्यूस द सॉल्यूशन का पीएच, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीजेस. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एनोड. एट एनोड व्हाट्स हैपनिंग? ऑक्सीडेशन इज गोइंग ऑन. The removal of this CH3 radical or the removal of CO2 is the RDS of this particular reaction. Okay, fine. It is undergoing the dimerization and ultimately we are getting the hydrocarbon.
what is the gas that is evolved at anode? In this particular case, what is the gas that is evolving at anode? It is CO2 and ethane, because we know ethane is also a gas, right or not? So this is the mechanism of the electrolysis or Kolbe electrolysis reaction. Now listen carefully. There are one or two points that are very important. Let us suppose, firstly, I want to ask one question from you. In Kolbe's electrolysis of acetate ion, aqueous solution of sodium acetate, what will happen? Option A, pH of the solution increases. Option B, pH of the solution decreases. Option C, pH of the solution increases. Option D, pH of the solution decreases. Option E, H2 gas is liberated at cathode. Option F, CO2 gas is liberated at एनोड. तो आपसे पूछा गया इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट बेटा? जैसा कि अपन ने देखा, कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है, water by taking one electron gets converted into half H2 plus OH minus. This is the one case. एनोड पे आपने देखा जो रिएक्शन हो रही है, acetate ion undergoes oxidation. It is forming ethane plus CO2 plus 2 electron. This is fine. Now what's happening? The concentration of OH minus is increasing. If the concentration of OH minus increases, then I will say pH will increase. If pH will increase, then I will say pOH will decrease. Because we know pH plus pOH, that is nothing, it is equal to 14 at 25 degrees Celsius. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राइट बेटा? ऑप्शंस पे चलते हैं. पहला ऑप्शन क्या बोलता है? pH ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, करेक्ट है. pOH ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, करेक्ट है. H2 गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड, बिल्कुल बेटा करेक्ट स्टेटमेंट है. CO2 गैस इज लिबरेटेड एट एनोड, बिल्कुल बेटा करेक्ट स्टेटमेंट है. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? दैट इज A, D, E एंड F. राइट सर? वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. लिसन केयरफुली, मेरी बात को बेटा ध्यान से सुनिएगा. Let us suppose, in general what I have, let us suppose I am discussing at anode. I have this anion, right? It gets oxidized into RC double bond O radical plus 1 electron. This is fine. Now this gets out via homolytic cleavage, and we know this is the RDS of the reaction. What I will get basically R radical plus CO2, and then finally R radical will dimerize and I will get RR as the major product, right? Listen carefully. Dimerization
will only takes place if R radical is 1 degree or 2 degree. In 3 degree radical, 3 degree free radical, dimerization will not takes place due to स्टेरिक हिंड्रेंस। 3 डिग्री के केस में क्या होगा बेटा, डाइमेराइजेशन पॉसिबल नहीं होगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। यही चीज हमने वुर्च रिएक्शन में भी डिस्कस किया था। तो सर एक बात बताइए, वुर्च रिएक्शन में हमने देखा था 3 डिग्री रेडिकल के केस में आपने एल्कीन और एल्केन बनाया था। जिसने वुर्च रिएक्शन का लेक्चर नहीं देखा है तो आप नेम रिएक्शन की प्लेलिस्ट में जाइए और आप वुर्च रिएक्शन का जरूर एक बार पढ़ के आइएगा, राइट बेटा। बट इन दिस केस आई विल नॉट गेट एल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट। व्हाट्स द रीजन? जब आर रेडिकल से एल्कीन बनता है तो वहां पे हाइड्रोजन रेडिकल का एब्स्ट्रैक्शन होता है। लिसन केयरफुली। सर समझ नहीं आ रहा, दोबारा बताइए। देखिए ये बेटा आपका 3 डिग्री रेडिकल है। मैंने वुर्च रिएक्शन में आपको बताया था ये बेटा आपका 3 डिग्री रेडिकल है। दिस रेडिकल इज एब्स्ट्रैक्टिंग दिस हाइड्रोजन। What ultimately I am getting this alkene and this alkene. Means in case of 3 degree radical the combination is not possible. What's the reason? Because due to the steric hindrance of the alkyl group. But sir in this particular case in Kolbe's electrolysis I will not get these products as the major product. What's the reason behind this? Because I am saying there is an abstraction of hydrogen radical takes place. So it's a type of an elimination reaction which is only feasible in case of heat. Elimination reaction बेटा आप जानते हैं heat का presence में ही ज्यादा feasible होता है। That's why ये दोनों products तो आपके यहां पे नहीं बनते। तो सर क्या बनता है वो बताइए, मैं बताता हूं बेटा, सुनिएगा। है क्या बेसिकली आर रेडिकल डाइमेराइज नहीं करेगा यदि ये 3 डिग्री है, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। यदि आर रेडिकल डाइमेराइज नहीं करेगा मतलब आर रेडिकल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा। और बेटा यदि आर रेडिकल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो एज पर द ली चैटलियर प्रिंसिपल रिएक्शन आपकी बैकवर्ड जाएगी। और यदि रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो बेटा इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा। मतलब अल्टीमेटली होगा क्या, इन केस ऑफ 3 डिग्री फ्री रेडिकल व्हाट आई विल हैव द आर रेडिकल एंड आई विल हैव दिस पर्टिकुलर रेडिकल। ये दोनों रेडिकल आपस में ज्वाइंट कर जाएगा और फाइनली आपको बेटा जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज RC डबल बॉन्ड OR। इस प्रोडक्ट को बेटा आप लोग क्या बोलेंगे, एस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, एस्टर। इसका मतलब कंक्लूजन पे आते हैं। कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, आपका जो 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनता है वो आपका एस्टर प्रोड्यूस करता है। आपका जो 1 डिग्री और 2 डिग्री होता है वो आपका एल्केन्स और एल्कीन्स या एल्काइंस प्रोड्यूस करता है, राइट सर। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एग्जाम्पल। अब अपन डिस्कस करते हैं बेटा एग्जाम्पल कैसे आते हैं। मैं बताता हूं, बहुत सिंपल है। केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। एक और बात मैं बताना चाहता हूं। जैसे आपने देखा हो क्या रहा था,
जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस बढ़ रहा था, इलेक्ट्रोलिसिस कॉन्टिन्यूटी में था, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा था, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था। ठीक है बेटा, साइमल्टेनियसली एनोड पे बेटा CO2 भी बढ़ रही थी, CO2 भी प्रोड्यूस हो रहा था। तो हुआ क्या, OH माइनस का कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है, CO2 का कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है। OH माइनस CO2 से कंबाइन करके बेटा क्या बना लेता है, Na2CO3। तो आपका जो CO2 का कंसंट्रेशन है वो आपका वो CO2 बेटा वहां से खत्म हो जाती है, CO2 NaOH से रिएक्शन करके Na2CO3 बना लेता है। राइट सर, आगे बढ़ता है। अब बेटा अपन चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल दैट आई हैव, लिसन केयरफुली। This I am writing Kolbe's electrolysis, right? Again the same one. देखो बेटा, पहले केस पे चलता हूं। क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, मीथेन बनेगा, CO2 तो बनेगी, H2 भी बनेगा, OH माइनस भी बनेगा। बेटा ये दोनों चीज, ये तीनों चीजें तो हर केस में बनेगी, तो इसको तो आप रख ही लीजिए, ये तो बनना ही बनना है। बाकी प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट में देखिए, ET होता है इथाइल, इथाइल इथाइल से जुड़ेगा बेटा तो आपको बनाएगा ब्यूटेन, प्लस ये सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे। नेक्स्ट केस पे चलता है बेटा, यहां से आपके पास मिलेगा 3 डिग्री रेडिकल, और 3 डिग्री रेडिकल बेटा आपको अभी मैंने बताया एस्टर बनाता है। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, प्लस ये सारे प्रोडक्ट्स तो बनेंगे। अगले पे चलते हैं, यहां रेडिकल बनेगा बेटा और यहां रेडिकल बनेगा, रेडिकल रेडिकल ज्वाइन करेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक बाइसाइक्लो कंपाउंड बन जाएगा बेटा कुछ इस तरीके का। करेक्ट आंसर। मतलब इस तरीका से आपको क्वेश्चंस पे क्या करना है, अप्रोच लगाना है। मैं और क्वेश्चंस बताता हूं, देखिएगा। देखिएगा बेटा, द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट आई हैव, दैट इज Kolbe's electrolysis। Kolbe's electrolysis, listen carefully। That is Kolbe's electrolysis। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले में क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से टूटा बेटा, ये बॉन्ड टूटा, यहां रेडिकल बना, रेडिकल बना, रेडिकल रेडिकल ज्वाइन कर गया बेटा, आंसर आपका इथीन आएगा, CO2 आएगा, H2 आएगा, OH माइनस आएगा। इनसे मतलब नहीं है, ये तो बनेगा ही बनेगा, काम का चीज ये है। अगले एग्जाम्पल पे चलता हूं। अगले एग्जाम्पल में होगा क्या बेटा, ये रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल बनेगा, रेडिकल रेडिकल कर गया कंबाइन, और आपके पास बन गया बेटा प्रोडक्ट साइक्लोब्यूटीन। बट देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी। मान लो ये पाई बॉन्ड बेटा होमोलिटिकली टूट जाए, होमोलिटिकली टूटेगा तो यहां डॉट आएगा, यहां डॉट आएगा, डॉट से डॉट कंबाइन करेगा बेटा तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। अच्छी बात क्या है, ये प्रोडक्ट आपके पास नहीं बनता है ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन। कैसे पता लगा, मैं बताता हूं, सुनिए बेटा। ये आपका साइक्लोब्यूटीन है, ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, बट एक्चुअल में ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 की वजह से 120 होना चाहिए। सो देयर इज अ एंगल स्ट्रेन ऑफ 30 डिग्री, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। द फाइनल प्रोडक्ट इज दिस वन। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नेक्स्ट
example that is very important. Listen carefully. In this case, what will happen? Listen carefully. I will get this radical, but these two radicals can't be joined because I told you a triple bond in the cyclic system will only be possible when the minimum ring size is the 8-membered ring. Okay, fine. सर डाइमेराइज करवा देते हैं, ये लीजिए. सर ज्वाइन कर देते हैं सर. तो बेटा ज्वाइन करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट ये बनेगा. अच्छी बात क्या है, ये प्रोडक्ट भी फिजिबल नहीं है. व्हाट्स द रीजन? सेंटर वाला रिंग आपका बेटा एंटी एरोमेटिक बन गया. और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल होते हैं. तो सर क्या करें बेटा, क्या करें? ट्राइमेराइज करवा के देखो. मेरी बात सुनिएगा बेटा ध्यान से. जब आप इसको ट्राइमेराइज करवाने चलेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा और सेंटर में एक बहुत शानदार आपको बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है, एरोमेटिक. मींस क्या? ये जो आपका कंपाउंड होगा बेटा, ना तो ये रेडिकल इटसेल्फ कंबाइन करेगा, ना ये डाइमेराइज करेगा. फाइनली सॉल्यूशन क्या है? ट्राइमेराइज करके बेटा एक एरोमेटिक कंपाउंड को प्रोड्यूस करेगा. वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट केस. लिसन केयरफुली. लेट अस सपोज आई हैव दिस पर्टिकुलर केस. मेरी बात ध्यान से सुनिए. कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करवा दिया. कुछ नहीं है, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, डॉट बनाओ, डॉट बनाओ. डॉट को डॉट से बेटा ज्वाइन कर दो. प्रोडक्ट आपका इथाइन आ जाएगा, CO2 आ जाएगा, H2 आ जाएगा, OH माइनस आ जाएगा. OH माइनस इज नॉट अ गैस, राइट. ये प्रोडक्ट तो सब में बनेंगे बनेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. मान लो बेटा सल्फोनिक एसिड का सोल्ट दिया है. जब आप इसका भी कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे ना, तो यहां से बॉन्ड तोड़िए, फ्री रेडिकल बनाइए, ज्वाइन करिए, प्लस CO2 बाहर नहीं निकलेगा. इस केस में बेटा जो गैस बाहर निकलेगा SO3 प्लस H2 प्लस OH माइनस. सो इन दिस वे यू कैन डू एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, राइट सर. अल्टीमेटली क्या करना है? रेडिकल बनाना है और आपको कंबाइन करना है. साइक्लाइजेशन आप करवा सकते हैं. इंट्रामोलिकुलर फ्री रेडिकल को आप रिएक्शन ज्वाइन करवा सकते हैं. जैसे मान लो ये एग्जांपल आपके पास आ जाता. अब इसमें आप देखिए, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, रेडिकल, तो अल्टीमेटली आपको एक साइक्लोप्रोपेन बेटा देखने को मिलेगा. तो इस तरीका से आप आंसर पे बेटा कमेंट कर सकते हैं, राइट सर. सो दिस इज ऑल अबाउट योर कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस. तो आज हमने 3 रिएक्शन पूरा बिल्कुल डिटेल में कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नई रिएक्शन के साथ. उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अपना ध्यान रखिए. टेक केयर. बाय.